तुम काफी टाइम से जिम जा रहे हो. You gained a lot of muscle in your new phase. Now it seems like you hit a wall and there is no progress to be found. You tried everything, you tried every workout. You don't know what mistake you are making that keeps you from gaining more muscle. Here are the 5 mistakes that surely you are making that is stopping you from making gains. Mistake number 1 is not training hard enough. This is the biggest mistake that many of us make who is now in his intermediate phase. हम complacent हो जाते हैं, हम अपने आप को पुश करना छोड़ देते हैं. हमें लगता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं. वी आर डूइंग इनफ टू बिल्ड न्यू मसल्स. नोइंगली और अननोइंगली वी स्टॉप पुशिंग आवरसेल्फ टू फेलियर. मसल ग्रोथ इज अ इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म. ये हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है टू फेस डिफिकल्ट चैलेंजेस. तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ग्रो नहीं करेगी अगर तुम उसे पुश नहीं करोगे, बिकॉज योर बॉडी विल थिंक दिस मच मसल इज गुड इनफ टू डील विद द challenges that we are facing currently. We are not pushing ourselves hard enough. It is not difficult anymore and it will not gain any muscle because it doesn't see any need to do so. Muscle building एक बहुत ही energy consuming process है. Because of evolution, our body is evolved to preserve as much energy as possible. And if you don't put yourself through hard sets, if you don't push yourself hard enough, it will not see any need to waste energy on building muscles. और मैं exaggerate नहीं कर रहा हूँ जब मैं ये बात बोलता हूँ. If you are not making faces like this, at least on some of your sets, if you are not letting out involuntary grunts, अगर तुम nervous feel नहीं करते before performing a challenging set, sorry to inform you, that means it's certain that you are not training hard enough. You need to push yourself to at least 1 to 2 reps to failure, bare minimum. और तुम कुछ sets को बिल्कुल absolute failure तक भी ले जा सकते हो. It will benefit you in the long run. Trying to do too much ego lifting. I see some people who trying to do too much too quickly. Yes, तुम्हें focus करना चाहिए to progressive overloading a exercise and adding weight to a bar is a primary way to do that. But if you're moving too quickly and just putting weight to the bar, not caring about your form, lifting a deadlift with a C on your back, that will not work for you. ये तुम्हें मसल ग्रो करके नहीं देगा. Too progressive overload mean that you do increase weight or reps, but your form will mostly look the same with previous weight. थोड़ा बहुत deviation या cheating चलता है, that is the part of the game, but तुम्हें वो भी आगे जाके correct करना होगा. Simply the bottom line is, if you can't use full range of motion in a proper form without excessive momentum, you need to scale down the weight. तुम्हें थोड़ा patience भी रखना पड़ेगा. और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम robot बन जाओ. You forgot everything or just focus on the mind-muscle connection, performing every set like a robot. तुम्हें एक middle ground ढूंढना पड़ेगा, where your technique or your form is perfectly spot on and you are allowing yourself a little bit of wiggle room to move naturally. The third one is not tracking your workout. अभी तक तुम्हें ये तो पता चल गया हो कि मसल ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, which means training close to failure and increasing the load over time. और इसको अचीव करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि तुमने लास्ट वीक कितना परफॉर्म किया था, increasing the reps over time and then adding a little bit of weight. You need to know कि तुमने कितना वेट लिफ्ट किया था, तुमने उसके कितने reps किए थे. बिना इसके तो तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड अचीव ही नहीं कर पाओगे. You can't make even a little progress without knowing how much you lifted last week. But if you know what is the target and what goal you need to hit to achieve maximum gains, achieving progressive overload becomes too easy. मैं एक Notion template पे अपना वर्कआउट ट्रैक करता हूँ, मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में. You can use that. It's very fucking easy. By doing this, you are giving a structure to your workouts. और तुम पागलों की तरह कुछ भी नहीं उठा रहे हो. You just feel like I can lift 15 kgs today, then in next week you are lifting 12 kgs. You need to get your workout in a structure so that जब अगला वर्कआउट आएगा तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा तुम्हें कितना वेट उठाना है, कितने रेप्स करने हैं और उसके कितने सेट्स तुम्हें परफॉर्म करने हैं. दैट इज व्हाई ट्रैकिंग योर वर्कआउट बिकम्स टू इंपॉर्टेंट. नंबर 4, एक्सपेक्टिंग टू मच टू क्विकली. लिसन बडी, बॉडी बिल्डिंग इज अ वेरी tiringly slow process. You will spend months without seeing any noticeable difference in your body. But अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो, तुम्हारी डाइट ऑन पॉइंट है, तुम्हारा वर्कआउट ऑन पॉइंट है, you are achieving progressive overload, you are tracking your workout, you are tracking your macros, you will make progress and you are making progress. It's just that as a natural lifter, progress बहुत slow होगी and it will take time. But you need to stick to these correct things to see a noticeable progress. But you need to stick to it for a long enough period of time to notice some progress. और इसके लिए मैं highly recommend करूँगा अपनी फिजिक की फोटोज लो, योर बैक, योर चेस्ट, योर लेग्स, टेक फोटो ऑफ एवरीथिंग एवरी वीक एंड कंपेयर योरसेल्फ टू योर प्रीवियस सेल्फ ऑन अ मंथली बेसिस. क्योंकि हम कभी कभी अपनी बॉडी को रोज देख रहे हैं क्योंकि हम उससे इतने अकस्टम हो जाते हैं कि जो स्मॉल चेंजेस हो भी रहे हैं हमारी बॉडी में, हम उसको डे टू डे बेसिस पे देख ही नहीं पाते. बट जब तुम आज की अपनी बॉडी को प्रीवियस मंथ्स की बॉडी से कंपेयर करते हो, यू कैन सी लिटिल टाइनी डिफरेंस, यू कैन सी द लिटिल टाइनी प्रोग्रेस दैट यू मेड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. और इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, बिलीव me, you are making progress whether
whether you can see it or not. So just stick to the right things that you are doing. And number 5, choosing the exercises that barely do anything. देखो, when we start lifting weights, हम उस टाइम पे ऐसे प्रोसेस से गुजरते हैं जिसको कहते हैं नूब फेज और नूब गेन्स. हम कुछ भी करें, we will gain muscles no matter what, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत रहती है 0 एक्सरसाइजेस की, और हम अपनी बॉडी को मूव करना चालू ही करते हैं तो हमारी बॉडी पहली बार एक एनाबॉलिक स्टेट में जाती है जिससे मसल ग्रोथ होती है. बट व्हेन वी इवेंचुअली ट्रेन फॉर लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी बॉडी अकस्टम हो जाती है उतने चैलेंजेस के लिए. उसके बाद हमें ऐसी एक्सरसाइज को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि पर्टिकुलर बॉडी वेट को टारगेट करे. इंटरमीडिएट फेज में हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते. वी विल नॉट ग्रो मसल इफ वी डू रैंडम एक्सरसाइज दैट वी सी ऑन यूट्यूब, दैट वी सी ऑन इंस्टाग्राम. और इसके लिए तुम्हें कोई पीएचडी नहीं चाहिए स्पोर्ट्स साइंस में. बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है अपनी बॉडी के हर मसल ग्रुप की, कि कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेस है जिससे वो मसल ट्रेन होगी. जैसे तुमने 4th पॉइंट को फॉलो किया और फोटोज ली हैं, तुम्हें ये पता चल रहा है कि मेरी चेस्ट तो अच्छी है बट लेटरल डेल्ट शोल्डर का बहुत वीक हो रहा है, तो तुम्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे लेटरल डेल्ट ग्रो करने के लिए क्या करना होगा. यू नीड टू डू लेटरल रेजेस फॉर इट, क्योंकि 99% लोगों के जो थोड़ा बहुत भी ट्रेन करते हैं उनका फ्रंट डेल्ट उनके लेटर और रियर डेल्ट से बहुत बड़ा होता है, क्योंकि फ्रंट डेल्ट इज टारगेटेड बाय एवरी पुशिंग मूवमेंट दैट यू डू फॉर योर चेस्ट. यू नीड टू पिक एक्सरसाइजेस दैट टारगेट योर स्पेसिफिक मसल ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम केवल स्क्वाट्स और लेग प्रेस परफॉर्म करते हो लेग्स के लिए, दे आर नॉट इनफ टू ग्रो योर हैमस्ट्रिंग. दे आर इनफ फॉर क्वाड्स बट they don't target hamstring very much. तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, इससे तुम्हें पता चलेगा कि हिप फ्लेक्शन हैमस्ट्रिंग ग्रो करने के लिए कितना ज़रूरी रहता है. तुम्हें अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तुम्हें सब लगेगा कि दे आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एवरी बॉडी पार्ट, बट बिलीव मी ब्रदर, जब तुम एक बार इसमें घुस जाते हो ना, इट विल मेक सो मच सेंस. हर चीज़ बहुत ज़्यादा सेंस बनाने लगती है, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ पता चलने लगती हैं. यू नो व्हाट दिस थिंग डू, यू नो व्हाट दिस मसल, दिस ब्रेकियल इज कॉल्ड बिटवीन ट्राइसेप एंड बाइसेप, और तुम्हें पता चल जाता है कि एक्जैक्टली कौन सी एक्सरसाइज करनी रहती है जिससे वो मसल ग्रो होगी. इट इज़ नॉट वेरी difficult. You don't need PhD or you don't need to spend hours and hours on doing research on this. You just need 5 to 10 minutes. That's it. So stop making these 5 mistakes and get to work.